Just see how dicey is it. It's very narrow path, and down you can see only death is there. So this is my friend from Kerala. He has come all the way from Kerala. I will request him to talk to you. Friends, my viewers wish that you should talk to them. So, sir, may I know what's your name, please? My name is Ashwant. Huh? Ashwant. Yashwant? Ashwant. Ashwant? Yeah. Yes, such, eh? So, guys, he's a young man from Kerala. Sir, give your introduction to my viewers so that him also. Okay. So, he doesn't want that he should be introduced with my viewers. So, friends, I would like to tell you that he has come from Kerala, known as God's own country, and that is, I think, just at level with at sea level. Yeah, sea level. Sea level, and there are back, waters. So it means that there are some places which are below sea level. Only then you can have backwater. So 0-degree altitude he has come here, and he is in high spirits. He is not feeling tiredness, and that is, this youth, what they can achieve. If he is from that Kerala, just from the seashore, but he is quite comfortable. He is not feeling the heat of this high mountains, traveling or going to this ascending to that track, going to Khir Ganga. So, sir, for how many days would you like to stay here? We will be returning in 2 days. Also, they will be going. He is accompanied by his 3 or more friends, and they are just head. So they are just leaving today. So, sir, where will you go? Which is your next destination? No, we are returning only to Delhi. Also, they will be going back to Delhi. From Delhi, you will take train or flight? Not yet confirmed. I guess we will go by train only. Also, they will go by train, dosto. Just see from how far away places people come to, these very secluded places in Himachal Pradesh. And I have been brought up in Himachal Pradesh, born and brought up in Himachal Pradesh, but for the first time I'm just trying to go to Khir Ganga. Just see how ignorant we are about our own assets, own that nature's treasures here. And these guys are coming from Kerala to become a witness to the most secluded and these virgin locations of Himachal Pradesh. So slowly and steadily I am moving ahead. So I am thankful to my friend. He has just spoken to me and told from where he has come and how he is feeling here. So friend, thank you very much. Friend, thank you very much. Okay. दोस्तों, मैं खीर गंगा की ओर बढ़ रहा हूँ और देखिए यहाँ मुझे एक कैफ़े मिला, ढाबा कह लें, कैफ़े कह लें. तो ये देखिए मेन्यू है यहाँ. टी, कॉफ़ी, लेमनेड, परांठा, ब्रेड ऑमलेट, टोस्ट, सैंडविच, मैगी, ऑन ऑर्डर चिकन भी मिलता है, राइस, रोटी, मटन, राइस है. तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से यहाँ देखिए अपना रोज़गार के अवसर ढूंढे हैं. तो यहाँ बहन जी बैठे हैं. यहाँ बहन जी क्या, तो मेरे बेटी जैसे सामान लग रहे हैं. तो बेटा जी नमस्कार. और ठीक है तुसे? अच्छा, मेरे दर्शक जो बताओ तुसे कि इस जगह जो क्या बोलना है, यहाँ बोलते हैं ऐसे छोटा वाटरफॉल है. दोस्तों ये बता रहे हैं कि जैसे जो गाइड क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वाले ने उन्होंने रखा था यहाँ का नाम जय जय जुंगरू ठाना. जय जय जुंगरू ठाना ऐसा नाम. जुंगरू ठाना है ना. तो दोस्तों बता रहे हैं कि फॉरेस्ट वालों ने तो इसका नाम अलग रखा था, लेकिन इसको छोटा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं दोस्तों. तो बेटा जी मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, ये मेरे दर्शकों को बताओ यार. बट सिट डाउन प्लीज.
है एक तंदूर है ये देखिए दोस्तों तंदूर है ये। इसके ऊपर पानी भी गर्म कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते ये देखिए देखो पहाड़ों में बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यह तंदूर है, इसमें आप आग भी सेक सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। और देखिए कितना यह अच्छी चीज़ है ये देखिए। और देखिए पूरी हीट भी बहुत अच्छी है इसमें, जिस हिसाब से जितनी लकड़ी आपको हीट चाहिए तो उतना इन्होंने देखो कैटल भी रखी है, इसमें पानी गर्म करेंगे। तो बहन जी बेटा जी आप स्वेटर बना रहे, क्या बना रहे, दस्ताने या सॉक्स बना रहे। देखिए लोकल जो महिलाएं हैं दोस्तों अपना सशक्तिकरण कर रही हैं। और देखिए यहाँ भी ढाबा भी चला रही हैं और सॉक्स भी बुन रहे हैं और फिर यह इसको मार्केट में बेचेंगे। पर्यटक बहुत शौकीन है यहाँ के जो हैंड नीटेड है। तो दोस्तों आजकल हैंड नीटेड जो आपके ऊनी जो चीज़ें हैं उनकी बहुत डिमांड है। अच्छा तो बेटा जी मेरे दर्शकों को आप बताइए कि जैसे आपने जो मेन्यू कार्ड रखा हुआ है इसके अनुसार चीज़ें मिल जाती हैं कि अच्छा ये मिल जाएगी है ना, जो इसमें ना वो मिल जाएगी। और लिखा आपने कि ऑन ऑर्डर ही होगा चिकन है ना। order तो वो जो अगर जो चिकन बनाना है आपने तो वो जो पर्यटक है उसको लाना पड़ता है कि आप अरेंज कर देते हैं। जैसे नीचे मार्केट जाना पड़ता है ना, जैसे आज आप ऑर्डर दे देंगे कल के लिए बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगर आपने चिकन वगैरह खाना है को मटन वगैरह तो आपको एक दिन पहले इनको ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमने खाना है। तो हम फ्रेश खाना बनाते हैं ना, हाँ, वैसे नहीं हाँ, बनाते हैं। लोग इतनी दूर से आते हैं ट्रैकिंग के लिए, फिर क्यों खिलाना। हाँ हाँ तो ये बता रहे हो कितनी इनकी बेटिया की कितनी ऊंची सोच है। बोलते हैं कि हम फ्रेश बनाते हैं उसी में, और फ्रेश लोग इतनी दूर से आते हैं उनको फ्रेश हम खाना खिलाते हैं। अच्छा तो बेटा जी देखिए आपका यहीं के घर कहाँ है दूसरे? घर बरसानी में। अच्छा बरसानी से। अच्छा तो रात को तो चले जाते होने आप है ना? जी वापस जाते हैं। तो देखिए दोस्तों बरसानी तो यहाँ से काफ़ी दूर होना है। कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से आते हैं। देखिए तो किस प्रकार से महिलाएं अपने सशक्तिकरण कर रही हैं दोस्तों। जैसे मैं कल आया यहाँ तो जो पॉइंट था जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की तो जो मेरा होम स्टे था एप्पल कॉटेज था वहाँ आने के लिए पैदल चलना पड़ता था। तो जो मैंने पोर्टर किए जो सेवाएं ली, महिलाएं थी, 2 महिलाओं की मैंने सेवाएं ली और उन्होंने मेरा सामान उठाया और उनको फिर मैंने 250 रुपये 500 रुपये दिए दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से जो यहाँ महिलाएं हैं तो उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि उनकी यूनियन बनी है और 60-70 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो जिस जैसे जैसे बारी आती तो उसके अनुसार वो ढुलान करती हैं, जो पर्यटक हैं उनके साथ जाती हैं। तो देखो बहुत दोस्तों बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से जब मैं तोश विलेज गया था गांव में तो वहाँ भी महिलाएं ये काम कर रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदुस्तान कैसी तरक्की कर रहा है, यहाँ की महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों देखिए गांव में ये जागृति आ गई। पहले थोड़ी महिलाएं शर्माती थी लेकिन अब कोई ऐसा काम नहीं है कि जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, हर काम कर रही हैं। पायलट हैं, शिप मतलब नेवी में हैं और आर्मी में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो हर फील्ड IAS हैं, IPS हैं। तो जो फील्ड्स पहले माना जाता था कि मैन डोमिनेटेड है तो उनमें भी अपना वर्चस्व कर रही है। और जब भी कोई एग्ज़ाम निकलता है कॉम्पिटिटिव तो उसमें महिलाएं श्रेष्ठ पदों पर होती हैं, पोजीशंस पर होती हैं। तो देखिए किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि अपना देखिए। और इनका मैं नमन करता हूं कि अपने घर का भी काम, बच्चों को भी देखना, क्योंकि जो महिला है एक घर की धुरी है दोस्तों। मतलब कि शी इज़ एन एक्सेस, सारा महिला के इर्द गिर्द काम चलता है। उसने बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, अपने पति को भी देखना है। और उसके बावजूद इन्होंने अब जैसे बाहर आके यहाँ इन्होंने ढाबा चलाया हुआ तो यहाँ भी काम करना। तो बेटा जी आप कितने बजे जाते हैं घर को? शाम को जाते हैं हम आजकल जल्दी ना, 5 बजे। गर्मी के टाइम में जाते हैं हम 7 बजे। तो दोस्तों बता रहे कि जैसे सर्दियाँ शुरू हैं, बहुत तेज़ सर्दी है इसमें, तो 5 बजे चले जाते हैं। और सवेरे कितने बजे खोलना है तुझे? 10 बजे। 10 बजे अपना ढाबा खोल देते हैं तो 5 बजे तक चलता है। तो पर्यटकों के लिए बहुत सुविधा है। कोई किसी को खाना है, चाय पीना, तो जैसे अब हम यहाँ रुके हैं तो हम चाय, तो बेटा जी हमारे लिए 2 चाय बनाइए, बड़ी है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मेरे दर्शकों देखिए किस प्रकार से हमारे जो यहाँ के हिमाचल के बहुत ही दूरगामी क्षेत्र हैं, जो बहुत ही से आगे तो कोई गांव ही नहीं है। खीरगंगा से आगे तो मेरे को लगता है कि फिर ट्रैकिंग रूट ही शुरू हो जाएगा। यहाँ से 10 दिन की ट्रैकिंग है। अच्छा हाँ हाँ बेटा बताइए फिर यहाँ से खीरगंगा से कहाँ से यहाँ? यहीं से है
है 10 दिन की, फिर वो निकलेंगे आप मनाली होके। अच्छा, दोस्तों बता रहे हैं कि यहाँ 10 दिन की ट्रैकिंग है। आपको गाइड जितने लोग होंगे उतने पोर्टर चाहिए और गाइड चाहिए। फिर मानतलाई की ट्रैकिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, टुंडा भूज की भी सारी ट्रैकिंग यहीं से। दूसरी ट्रैकिंग है ऊपर से कलगा से, वहाँ को बोलते हैं भुनभुनी, सरपास की ट्रैकिंग भी है। ट्रैकिंग तो यहाँ बहुत सारी है ना। दोस्तों देखिए, इन्होंने मतलब कि हमने तो ऐसे बात की, इन्होंने तो ट्रैकिंग के पुटारा खोल दिया। बता रहे मानतलाई, फिर मनाली को भी जाती है 10 दिन की, और कई मतलब इन्होंने किया, नाम मेरे को याद नहीं रहे, आपने सुन ली होंगे शायद। थोड़ा सा मैं इनके नज़दीक जाता हूँ। तो बेटा जी बताइए मेरे दर्शकों को कौन कौन सी ट्रैकिंग रूट्स हैं यहाँ। यहाँ पे सरपास है, भुनभुनी है, और यहाँ से 10 दिन की ट्रैकिंग है, वो मनाली होके निकलेंगे आप। हाँ। जैसे मनाली, काजा, ये सब कुछ निकलेगा आपको इसी ट्रैकिंग पे। तो दोस्तों देखिए, खजाना है यहाँ से ट्रैकिंग का। तो जितने लोग होंगे तो जितने लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे उतने गाइड चाहिए, पोर्टर चाहिए। गाइड एक होगा, 2 भी हो सकते हैं गाइड। इतने लोग तो चाहिए, जितने पोर्टर उतने, जितने लोग होंगे तो उतने पोर्टर भी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बता दिया है कि कितना सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। गाइड 2 गाइड चाहिए, पोर्टर चाहिए, तो आप पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चप्पे चप्पे से मतलब उनको जानकारी है इस रूट के बारे में। तो बेटा जी आपको उनका रेट्स का तो नहीं पता होना कि कितने रेट्स हैं, अंदाजा कोई, मतलब कि जैसे 10 दिन का किसी ने ट्रैकिंग करी, कुछ अंदाजा, मोटा मोटा अंदाजा है, नहीं कि बस जैसे मोटा 20-25 हज़ार कितना ले लेते होंगे। ज्यादा है जी। अच्छा, 40-50 हज़ार देखो दोस्तों लग जाता है। तो अगर 10 दिन की, एक लोगों का लगता है से 35 हजार। हाँ, तो बता रहे एक व्यक्ति का 35,000 रुपये लग जाएगा। लेकिन आप बहुत ही सुरक्षित हाथों में होंगे। जो पोर्टर भी होंगे वो भी बड़े कैपेबल होंगे, बड़े एक्सपीरियंस्ड होंगे, और जो गाइड हैं वो तो होंगे गाइड जिसने मार्गदर्शन करना है, और आपकी खाने पीने की, हर रहने की सुविधा वही प्रोवाइड करेंगे। और आपकी सुरक्षा का भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, बर्फ़ पड़ जाए, कुछ हो जाए तो वो आपको सुरक्षित निकालेंगे। दोस्तों तो देखिए, तो इन बेटा जी से बात करने से जो मेरे दर्शक हैं, कितनी बड़ी जानकारी मिल गई। तो ये जानकारी आपको किताबों में या कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती है। तो मैं इस बेटिया नाम बताओ अपना। दिम्मी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे पति भी है ना गाइड, वो अभी गाइड गए हैं जैसे खीरगंगा टूरिस्ट लेके। अच्छा, तो दौर बता रहे हैं इनके पति भी गाइड हैं। तो चलो दोस्तों, अब उनसे मुलाकात नहीं होती, अगर मुलाकात हो जाती तो और आपको मैंने विस्तृत जानकारी देनी। तो निकल गए, अब तो कल आना उन्होंने, शाम को वापसी है उन लोगों को। अच्छा, शाम को आना है। 8 बजे। अच्छा, कितने डबेले हैं मतलब दूसरे एक दिहाड़े रे? जैसे आना जाना किया बोलो उन्होंने 1500 वाला। तो दोस्तों बताइए, देखिए 1500 रुपये में अगर आपने अपना गाइड लेना है तो 1500 आप दे सकते हैं, सुरक्षित हाथों में होंगे। अब ये जो लेके गए हैं तो उनको जो भी ट्रैकर्स हैं उनके साथ जा रहे हैं, उनको वापस सुरक्षित लाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सुविधा दोस्तों। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपने ऐसे ट्रैकिंग रूट पर जाना है तो गाइड लोकल ले लीजिए, तो इससे आप भटकेंगे नहीं और बड़े सुरक्षित हाथों में रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी बिटिया ने दी, निमी ने। और तो ये बात है, कर गए मेरे 100 की गल है, कर गए मेरे 100 की गल, तू सारे घर वाले कर गए मेरे 100 की गल, कर गए, क्या बोलते, नहीं कोई नहीं, कुल्लू रे कर गए, चलो अगर नहीं करनी रहने दो, कोई नहीं बोलो। तो देखो भाई, ये देखिए, चलो दोस्तों ठीक है ना। काम करने बैठे इतनी दूर आके तो दोस्तों देखिए, अब हम चाय पी रहे हैं। मैंने जो मेरे केरला से दोस्त आए हैं, बहुत ही मेरे बिटिया ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। देखिए, बहुत अच्छी बेटा चाय बनी है ना, बहुत अच्छी चाय बनी है। लोग आते स्पेशल चाय पीने के लिए। हाँ देखिए, कल मतलब गर्म पानी पिला। हाँ ये देखिए, ये बता रही है बिटिया, बता रही है कि लोग स्पेशल यहाँ चाय पीने आते हैं, और दूसरी जगह तो ये बताते हैं। और देखिए कितनी इन्होंने क्वांटिटी बहुत अच्छी दी है, अदरवाइज कई जगह तो बिल्कुल ही कम क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी बहुत है। और इनका देखिए, और ये बता रही बिटिया कि जैसे फॉरेस्ट का एरिया है, तो जब फॉरेस्ट गार्ड या कोई उनके दूसरे अधिकारी आते हैं
तो बताते कि बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं आप। और बिल्कुल दोस्तों देखिए बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ इन्होंने, देखिए, और प्रेपरेशन बहुत अच्छी है। और देखिए ये देखिए, और इन्होंने जैसे अभी बहुत ही अच्छी जानकारी ट्रैकिंग रूट्स के बारे में दे दी है। अब इनके जो हस्बैंड है बबलू हैं, वो अभी ट्रैकर्स को लेके गए हैं। तो जो लंबी ट्रैकिंग होगी ना उसके लिए तो नीचे डॉक्टर के पास चेक होकर जाना पड़ता है पहले, क्योंकि आगे ऑक्सीजन की डर रहती है। अगर किसी की ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर चाहिए नीचे डॉक्टर से सारा कुछ डिटेल निकाल के आना। जंगल में कहाँ से करेंगे, फिर ऑक्सीजन की दिक्कत रहती ये देखिए है। दोस्तों, बहुत बिटिया ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जैसे किसी ने लंबी ट्रैकिंग करनी है तो पहले मेडिकल चेकअप डॉक्टर से कराना पड़ेगा, पूरा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप फिट हैं। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर जंगलों में कहाँ उनका इलाज होगा। जो नहीं चल पाता उसको वापस भेज देते हैं, यहीं से ही भाई वापस जाओ। और ये बता रही है कि अगर किसी जो ट्रैकर है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रास्ते से ही वापस भेज दिया जाता है। और अगर किसी ने लंबी ट्रैकिंग करनी है तो पहले देखिए कि आपका जो हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और मेडिकल प्रमाण पत्र भी चाहिए, ताकि कल को फिर कोई आपको भी ना प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आपको आ जाती है तो इनके जो हमारे गाइड हैं, जो पोर्टर हैं, तो उनको भी समस्या पैदा होती है। तो ये सुनिश्चित करके चलते हैं कि जो भी यहाँ चले तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ी सी चाय है, अब चाय का आनंद ले रहा हूँ मैं और आगे बढ़ूँगा फिर। और मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि अगर आप इस ट्रैक से जा रहे हैं तो यहाँ ये जो दिम्मी ने नाम बताया, इनका नाम तो इसका है नहीं है कोई भी, जो इनका ढाबा है, कैफ़े है, तो यहाँ जो छोटा वाटरफॉल है उससे कोई 100 मीटर पहले है। तो वहाँ आप ज़रूर चाय का आनंद कीजिए। बाकी जो मेन्यू कार्ड के अनुसार चीज़ भी बना देते हैं हम, और नॉन वेज ऑन डिमांड भी बन जाता है, तो इनको अवसर दीजिए। तो इसी प्रकार से जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक भी हम अपना कुछ सहयोग इनके उसमें दे सकते हैं, थोड़ा सा इनको आर्थिक तौर पर उत्थान करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।